SDLC. So there are some models, okay, SDLC models. So there are some SDLC models we have. That is what waterfall model, incremental model, prototype model, spiral model. RAD means RAD development model, rapidly application development, V model, and agile models. Okay, so these are the different types of SDLC models. So we know the what is SDLC. Okay, so the interviewer always asks what is SDLC. Okay, software development life cycle. Then explain the SDLC. So it is SDLC process having the different type of phases, that is requirement analysis, designing, coding, testing. Okay, maintenance, right? We have to explain everything. Okay, so what is happening in the designing, what is happening here, and what is happening in the testing. Okay, so you have to explain that everything. And after the SDLC you will ask the one question, that is what STLC. This, okay, after the completion of SDLC they will ask you STLC, software testing life cycle. Okay, this will be covered after this all the models we have seen. Okay, so here the mostly asked question on waterfall model and agile model, and simply you can say them I am working in the agile model, that's it. Okay, agile SDLC model, and which framework we are going to use? Scrum framework. Okay, Scrum framework. Just I am giving here only the description and more use of this SDLC models. Okay, ये just इंट्रोडक्टरी पार्ट में यहाँ पे ले रहा हूँ कि एस डी वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, इंक्रीमेंटल में क्या होता है, प्रोटोटाइप में क्या होता है, स्पायरल में क्या होता है. ओके, so sometimes they will ask you what is waterfall model, so you have to explain in your way. Okay, and if you're saying that I know the agile model and I am using the agile model, currently our organization following the agile methodology. Okay, so that is okay, no problem. Okay, so here I am going to explain the agile model. Then after the few more classes, means after the 5 to 10 classes, so I am going to uh, introduce the Jira. Okay, at that time also I will explain the agile methodology. Okay, to two times. So here I am giving the short intro, but in the agile, in the Jira, when we started Jira with agile, okay, like a live project, so उस time पे मैं और explain करूँगा briefly. Okay, so just understand the SDLC models, what happened in waterfall model, what happened in the incremental models. Okay, so these are the SDLC models. Sometimes they will ask what are the SDLC models do you know? So you can simply say all the name. Okay, waterfall, incremental, there are the waterfall model, incremental model, prototype, spiral model, RAD model, V model, and agile model. They will ask you currently your organization which following the models. Okay, so these models कैसे डिफाइन करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है, टेक्निकल टीम डिसाइड करती है कि हमको कौन से मॉडल से जाना है. ओके, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट. ओके, प्रोजेक्ट कैसा है, प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होने वाली है, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, उसका कॉस्ट क्या है और उसका टाइम क्या है. ओके, वी हैव द सम पैरामीटर्स, देन दे विल discuss with the team, technical team, then they will decide which models I have to use. Okay, we have to use. Okay, so that is dependent. So now we are going to just see the introductory part of the waterfall model. Okay, so the waterfall models में क्या होता है? This is known as a sequential model. Okay, sequential model है. Okay, so here are the some phases: requirement, designing, implementation, verification, and maintenance. Okay, this model is also termed as linear sequential model. Okay, this is the traditional model. ट्रेडिशनल. अब इस वाटरफॉल मॉडल में का यूज़ क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन फिक्स रहते हैं. ओके, वी हैव द फिक्स रिक्वायरमेंट. ठीक है, रिक्वायरमेंट हमने एनालिसिस की है, सो वी गैदर द ऑल द रिक्वायरमेंट, वी हैव क्रिएटेड डॉक्यूमेंटेशन, वी डिजाइन द एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन, वी डिजाइन एवरीथिंग, डेटाबेस डिजाइन, architecture design, everything. Okay, according to that we have implemented, then we have verified. Okay, verification means completion, development. Okay, then we are maintenance and we are going to release, maintenance and the release. Okay, so this is dependent.
means if you don't have the requirement, then you can't go for the designing. If you don't have the design, then you can't go for the implementation means here coding and execution engineering. Okay, then verification means we are going to say here the testing and maintenance. Okay, verification means testing that one. So that is dependent, means you can't go directly designation and verification. Okay, and if you started the requirement, okay, this is 2 3 stages are there for going for the requirements, and we complete the requirement the one stage, then we can't go for the design stage. ओके, हमको नहीं जा सकते, लेकिन इसका मतलब हमको सारे रिक्वायरमेंट पहले कवर करना है. ओके, और जब हम बोलेंगे कि दिस टास्क इज कंप्लीटेड, requirement task is completed, then we can going to start a new task. Okay, that is new phase, that is design phase. Okay, तो वाटरफॉल मॉडल में क्या है कि जब तक हम पहला स्टेज कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट मतलब कि पूरी तरह से अगर वो स्टेज कंप्लीट हो चुकी है हमारा, ओके, उसके बाद ही दूसरे स्टेज में जाएंगे. ओके, मतलब कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट स्टेज. फर्स्ट इज कंप्लीट स्टेज. जैसे हमने रिक्वायरमेंट के लिए जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी आएगी नहीं तो क्या हो कि 10 दिन में वर्क करे, रिक्वायरमेंट हो गई, फिर हम आगे बढ़ना चालू हो गए, उसको डिज़ाइन करना चालू करते, इम्प्लीमेंट करते, इसे टेस्टिंग करना चालू करते, उसके बाद और नई रिक्वायरमेंट आई. ओके, सो और प्रॉब्लम, सो अगेन वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेज, राइट. सो दैट मीन्स अभी वाटरफॉल मॉडल की ज़रूरत मतलब कैसा है कि जब रिक्वायरमेंट फिक्स है, ओके, देन यू कैन फॉलो द वाटरफॉल मॉडल. सो वाटरफॉल मॉडल में जब तक पहली स्टेज कंप्लीटली डन नहीं होती, कंप्लीटली डन मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू बैक टू द अगेन द रिक्वायरमेंट. ओके, यहाँ से कि मतलब डिजाइनिंग हो गई और वो ये डिजाइनिंग जब तक कंप्लीट, सॉरी, रिक्वायरमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक डिजाइन में नहीं आएंगे. ओके, डिजाइनेशन इज कंप्लीट होने के बाद ही हम इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे, जिसमें हम कोडिंग और एग्जीक्यूशन करेंगे. ओके, दैट इज डिपेंडेंट. सो it's a linear sequential model, and what is happen after the requirement is get changed, then we have to follow the again the same process. Okay, so it will take the more time, again it will take the more time, because for the requirement it will take the some few months or year, months ही लेंगे. Okay, डिजाइनिंग के लिए ज़्यादा 1 year तक चला जाएगा, नियर टू 6 to, that is dependent according to the what is the requirement. Okay, that is dependent. implementation कोडिंग के लिए भी उतना टाइम जाएगा, टेस्टिंग के लिए भी कम टाइम जाएगा, देन क्या प्रॉब्लम है, देन उसको सॉल्व करेंगे मेंटेनेंस के लिए. ओके, so the waterfall model system or a project model in sequence manner. Okay, that is in the sequence manner. The SDLC phase will be accomplished in the linear fashion, one after the another. जब तक एक कंप्लीट नहीं होती तब तक दूसरे को स्टार्ट नहीं करेंगे. ठीक है, पूरी कंप्लीट होने के बाद इसका मतलब उनका काम खत्म हो गया रिक्वायरमेंट का, अभी वो रिक्वायरमेंट पे वर्क नहीं करेंगे, अभी सिर्फ डिजाइनिंग पे वर्क करेंगे. ओके, लाइक दिस वे वन एक्टिविटी कैन बी स्टेटेड अंटिल द प्रीवियस एक्टिविटी इज कंप्लीटेड. ओके, सो हम जब तक पहले कंप्लीट नहीं होते तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे. ओके, वन एक्टिविटी कांट बी स्टेट, ओके, अंटिल द प्रीवियस एक्टिविटी इज कंप्लीट. जब तक प्रीवियस एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे. ठीक है, देन फॉर एग्जांपल टेस्टिंग कैन बी स्टार्टेड अंटिल द प्रीवियस पेजेस आर फिनिश. ओके, फॉर एग्जांपल हम टेस्टिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि टेस्टिंग जो है वो 3rd 4th पेज पे आती है. ओके, डायरेक्टली हम टेस्टिंग स्टार्ट नहीं कर सकते. ठीक है, जब तक पूरा कंप्लीट होने के बाद ही हम टेस्टिंग कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्टली नहीं कर सकते वाटरफॉल मॉडल में. ओके, वी कांट डू द डायरेक्टली बिकॉज, ओके, सो हियर जब तक ये कंप्लीट नहीं होता रिक्वायरमेंट डिजाइनिंग दिस ऑल द फेजेस आर नॉट कंप्लीटेड, देन आफ्टर दैट सपोज ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, देन यू कैन गो फॉर द टेस्टिंग. ओके, वेरिफिकेशन मीन टेस्टिंग. सो डिपेंड है. डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैरिड आउट सिक्वेंशियली. Okay, then review and approval of the each phases output. It will take the review and approval. जैसे अभी रिक्वायरमेंट हो गई, ये फेज कंप्लीट हो गई सपोज मान लीजिए, तो यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले रिव्यू लेंगे. ओके, रिव्यू दिस वन, सीनियर पर्सन रिव्यू करेगा, देन रिव्यू लेने के बाद अगर वो और एक बार चेक किया सीनियर पर्सन ने और उसको ओके लगा, तो फिर देन टेस्ट मैनेजर, सॉरी, मैनेजर विल अप्रूव. ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर, देन अप्रूवल होने के बाद ही इसको स्टार्ट करेगी डिज़ाइन को. ठीक है, ये रिव्यू और अप्रूवल होने के बाद ही, साइन ऑफ होने के बाद ही इधर जाएंगे. ठीक है, दैट इज डिपेंडेंट. सो मॉडल डज नॉट परमिट गोइंग बैक एंड फोर्थ.
ओके, आप यहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड नहीं जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते किधर से भी, हाँ, इधर से ऊपर भी नहीं जा सकते, नीचे ये भी नहीं आ सकते। इनका कहने का मतलब ये कंप्लीट होगा तो यही करना पड़ेगा, ये कंप्लीट होगा यही करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से इधर और इधर से बैकवर्ड, ऐसे डायरेक्टली, मतलब यहाँ से रिक्वायरमेंट के बाद डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जा सकते हो आप, ओके। So if any defect found, अभी देखो, if any defect found, then go back to the original originating phase and start the traversing sequentially all over again. Okay, so जब भी हमको डिफेक्ट मिला तो पूरा और बैक जाके पूरे क्या बोलते फेज हमको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज द डिसएडवांटेज, ठीक है नहीं। हाँ। तो हमको यहाँ पे वेरिफिकेशन में कुछ ये इसका मतलब हमारी जो वेरिफिकेशन में परफेक्ट होनी चाहिए यहाँ पे, है क्या नहीं। और यहाँ से हमको डिज़ाइन पता चलना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ओके। जैसे जितने भी हमारे बग्स आए तो वो क्या करेंगे, हम पूरा रिपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट बना के रख देंगे पूरा। तो फिर हम उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि जो प्रोडक्ट ओनर है वो डिसाइड करेगा कैसा करना है क्या करना है, देन टू फिक्स दैट वन, ओके। सो ओनली वी हैव टू डू द एवरीथिंग, ओके, सेम रिक्वायरमेंट डिजाइनिंग एवरीथिंग वी हैव टू डू फॉर दैट वन, ओके। सो वाटरफॉल मॉडल का कौन से प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट क्लियरली डिफाइंड है, मीन्स एक बार आपने रिक्वायरमेंट दे दी आगे जाके वो चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है, उसके लिए वाटरफॉल मॉडल ठीक है। मैंने बनाया फ्लिपकार्ट में मैंने देखा यही प्रोडक्ट रहेंगे आगे चेंज नहीं होने वाले हैं, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन वो रिक्वायरमेंट हमेशा बदलती रहती है, फ्लिपकार्ट मतलब जो हमारी ई कॉमर्स की साइट से, उसके लिए परफेक्ट नहीं है वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल बिलिंग के लिए ठीक है, बिलिंग सॉफ्टवेयर्स के लिए, लेकिन वो ओके। भी छोटे वाली बिलिंग, वो भी नहीं कि उसके आइटम्स वगैरह बढ़ते रहेंगे तो फिर और कोडिंग करनी पड़ेगी ना आइटम्स डालने के लिए। हाँ। जैसे मान लो कि एक रेस्टोरेंट है उसमें उतने आइटम मिलने वाले हैं, ठीक है, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि कुछ सालों के लिए फिक्स रिक्वायरमेंट है तो वाटरफॉल मॉडल यूज कर सकते हैं। जहाँ पे रिक्वायरमेंट फिक्स है, क्लियर डिफाइंड है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रहता है वाटरफॉल मॉडल में, सिर्फ अजाइल में डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहता है, कम रहते हैं, ठीक है। सो वाटरफॉल मॉडल डॉट कंटेन द FRS SRS, है ना, ये सब डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं। सो बिकॉज देयर इज अ क्लियरली मेंशन द रिक्वायरमेंट इन द FRS डॉक्यूमेंटेशन, क्लियरली मेंशन है, ओके। द स्मॉल एंड मीडियम टर्म ड्यूरेशन के लिए ठीक है, ओके। मान लो कि 1 से लिए 2 साल या 3 साल तक का प्रोजेक्ट है, 1 to 2 ईयर्स के लिए, उसके लिए ठीक है वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक साइकिल बनाने के लिए आपको इतना टर्म जा रहा है, तो 1 से 2 साल, तो 2 साल वही टर्म जाएंगे और बग फिक्स और पूरे एंटायर के लिए, है क्या नहीं। अब मान लो कि 1 ईयर का प्रोजेक्ट है तो आपको और 1 ईयर लगेगा पूरी एंटायर साइकिल फॉलो करने के लिए, सेकंड वाली। इसीलिए पूरे क्लियरली मेंशन चाहिए रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग इज ओके। सो स्मॉल एंड मीडियम टर्म ड्यूरेशन के लिए ठीक है, ओके। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए दैट इज नॉट ओके, बट एंड स्टेबल टेक्नोलॉजी, ओके, familiarly with the domain and development environment. So यहाँ पे stable technology means the one project were completed in Java. Okay. So tomorrow I want to change my technology. Okay. So that is very critical. Okay. So it will again take the more time. Okay. So your project is running in the Java environment. I want to run them in my Python environment. I want to run in my Linux environment. Okay. So that's why the domain and development environment is very required. Okay. So that means a stable technology is required. Okay. So because stable होना बहुत जरूरी है, right? So हम उसको go back नहीं कर सकते. So that is problem. So we can say the advantages. Okay. So हमेशा प्रोजेक्ट जो है अंडर द कंट्रोल रहेगा. Why? Because clearly define the documentation requirement. ठीक है, यहाँ पे जो हमको डॉक्यूमेंट मिला उसी के अकॉर्डिंग टू हम काम करेंगे, डेवलपर भी उसके अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन करेंगे, ओके। हम भी टेस्टिंग सिनारियो हमारे उतने च रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको चेंज रिक्वेस्ट कुछ नहीं आने वाली है, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन क्लियरली डिफाइन है। इसीलिए एनालिसिस और रिक्वायरमेंट के लिए वो सबसे ज़्यादा सोचते के वो डॉक्यूमेंट बना के रख देते हैं,
ठीक है, मतलब फिक्स हो गया, पूरा डॉक्यूमेंटेशन फिक्स करके रख दिया. सो प्री डिफाइन आउटपुट एट द एवरी फेजेस, वी नो व्हाट इज गोइंग टू बी क्रिएट इन द आउटपुट. ओके, सो एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस होने के बाद हमको पता चलेगा कि इसका ये डॉक्यूमेंट बनने वाला है. ओके, डिज़ाइन के बाद हमको क्लियरली मेंशन रहेंगे कि उसकी डॉक्यूमेंट डिज़ाइन वैसी रहेंगी, फिक्स डेटाबेस रहेगा, डेटाबेस आर्किटेक्चर की डिज़ाइन भी वैसी रहेंगी. ओके, ट्रैकिंग चेंजेस इज आल्सो ईजी. यहाँ पे भी हम ट्रैकिंग चेंजेस ईजी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि क्योंकि अब मान लो कि मुझे कुछ चेंजेस आ रहे हैं इस पे, तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, इधर तो गया ही नहीं ना मैं, क्योंकि इस पे कब आऊँगा मैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा. हाँ. तो इसका मतलब ये है मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ. ट्रैकिंग द चेंजेस इज इजी. ओके, इसका मतलब सब जगह के नहीं जा सकता मैं. देन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्लीपेजेस. ओके, इफ इन स्लीपेजेस मतलब होता है कि जो बग्स वगैरह होते हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई भी बग्स डिफेक्ट आ सकता है या स्लीपेजेस हो सकते हैं, तो वी कैन ये अर्ली आइडेंटिफाई बिकॉज आवर रिक्वायरमेंट इज फिक्स. रिक्वायरमेंट जैसे फिक्स है, मुझे पता है कि यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बनने वाला है और यहाँ पे सिर्फ 2 ही टेक्स्ट फील्ड रहने वाली है और यहाँ पे एक ही बटन रहने वाली है. ठीक है, सो ऑल द पॉसिबिलिटी सिनेरियो आई कैन अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द दिस यूआई एंड फंक्शनलिटी. तो मैं सारे क्या बोलते हैं सिनारियोज में पूरे अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि स्लीपेजेस वगैरह कहाँ आ सकते हैं. सो आई कैन इजीली आइडेंटिफाई द स्लीपेजेस, मतलब डिफेक्ट्स या बग्स वगैरह ऐसे टाइप्स के है क्या नहीं. Slippages means the bugs and defects, no? हाँ, डिफेक्ट्स रिलेटेड, जैसा आने वाला है, बग आने वाला है. हाँ हाँ हाँ. ओके, सो समथिंग wrong going to be happen with application, that may be the bugs or defect. Okay, that is known as the slippages. हम्म. ओके, सो जैसे मतलब क्या बोलते क्या बोलते उसके डिफेक्ट आ रहे हैं, कुछ नंबर ऑफ डिफेक्ट है ना. हम्म. सो रिपोर्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन टाइम आल्सो. ओके, जैसे हम डिप्लॉय कर रहे हैं उस टाइम पे क्या डिफेक्ट आ सकते हैं. ओके, सो दैट इज वी कैन से द स्लीपेजेस आल्सो. कभी डिफेक्ट हमको हमेशा आइडेंटिफाई ये करना है कि डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, प्रोडक्शन के टाइम के क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ये पहले हमको आइडेंटिफाई करना है. ये वाटरफॉल मॉडल में ईजी है. ठीक है, स्लिपेजेस मतलब जैसे हमने डिप्लॉय कर दी एप्लीकेशन अभी क्लाइंट पे, और हमने जो टेस्टिंग किया, हमको वो बग नहीं हुआ फाउंड. ठीक है, लेकिन एंड यूजर को बग फाउंड हो गया. ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट लीकेज. ठीक है, डिफेक्ट Okay. लीकेज, क्योंकि टेस्टिंग के टाइम पे हमको बग नहीं मिला. डिफेक्ट लीकेज एक मैट्रिक्स है, दैट इज efficiency of the QA testing. Okay, you are not find any bug, but the bug is identified by the end user. हाँ. ठीक है, आफ्टर द प्रोडक्शन टाइम. ठीक है, पूरा डिप्लॉय होने के बाद, उसके पहले तो हम यूएटी टेस्टिंग करते थे, और यूएटी टेस्टिंग में हमको फाउंड नहीं हुआ है. ओके, बिफोर द डिप्लॉयमेंट वी आल्सो गो फॉर द यूएटी टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. ओके, प्रोडक्शन के पहले. और यहाँ पे हम अल्फा बीटा सब कर लेते हैं. ओके, एंड यूजर के साथ भी बैठ के एंड यूजर भी करेगा सब, एंड यूजर विद द डेवलपर एंड इन क्लाइंट रिक्वायरमेंट इस पे. ओके, सो ये तो कर लिया, लेकिन हमको यहाँ पे कुछ फाउंड नहीं हुआ. ठीक है, और जब वो डिप्लो प्रोडक्शन पे चला गया और यहाँ पे एप्लीकेशन अभी लाइव हो गई है और यहाँ पे कस्टमर यूज कर रहा है, एंड दैट इज फाउंड एनी डिफेक्ट बाय द एंड यूजर, और यू कैन से द एंड यूजर से मतलब प्रोडक्शन टाइम पे अगर बग आ गया. ओके, सो वी कैन से दिस इज व्हाट डिफेक्ट लीकेज. ठीक है, लीकेज हो गया, लीक हो गया वो डिफेक्ट लीकेज. सो वैसे टाइप को बोलते हैं स्लीपेजेस. ओके, स्लीपेजेस. सो प्रोडक्शन टाइम पे जो बग रिपोर्ट होते हैं, दैट इज नोन एज द स्लीपेजेस. ओके, तो मुझे सबसे पहले पता रहेगा वाटरफॉल मॉडल में कि प्रोडक्शन के टाइम पे क्या क्या बग्स आ सकते हैं, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट फिक्स है. ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन मेरा फिक्स है. तो मैं वैसे ही सोचूंगा कि स्लीपेजेस आए आ सकते हैं, तो उसको मैं पहले उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ. ओके, दैट इज आई अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्लीपेजेस, अगर कुछ आ रहे होंगे तो प्रोडक्शन के टाइम पे आएंगे तो. ठीक है, सो देन व्हाट इज द डिसएडवांटेज, एडवांटेज स्लीपेजेस फाइंडिंग. ठीक है, इजी हो जाता है. सो डिसएडवांटेज देखिए इसका क्या है. इन रियल लाइफ कस्टमर रिक्वायरमेंट डू चेंजेस
In real life, the customer requirement who changes the customer appraisal of the completed work and not feasible always. Okay, so pages cannot be run concurrently also. So you know the customer से requirement जो है वो हमेशा जो है वो चेंज होती रहती है, नॉट फिक्स. ठीक है, बराबर है क्या नहीं? सो दैट्स वाई दिस इज डिसएडवांटेज, because sometimes customer need to have something new requirement he want to add or something to do there. Okay, so this is not available, means to do the changes it will take the more time. Okay, because we need to follow the each and everything, each page, सब पेज फॉलो करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोडिंग में जाके मैं अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे एनालिसिस भी करना पड़ेगा, डिजाइनिंग भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा मुझे. ओके, सो दैट इज अ प्रॉब्लम. So this is not carried out. Okay, so the in real time the customer requirement not carried out. So waterfall model कैसा कि जहाँ पे फिक्स रिक्वायरमेंट है और चेंज होने वाला नहीं है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं. लेकिन आज के ज़माने में कैसा है कि 2 दिन में क्या चेंज होगा भरोसा नहीं है. तो इसीलिए है क्या नहीं, आज बोलेंगे मुझे ऐसा है, कल बोलेंगे मुझे वैसा चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया के साथ अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे लोगों के साथ, तो फिर हमारा जो बिजनेस है वो आगे नहीं बढ़ेगा. ठीक है, तो हमारा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमको ऐसा मॉडल यूज करके रखना चाहिए कि हम एनी टाइम कस्टमर रिक्वायरमेंट वी आर रेडी टू सर्व यू. ओके, वी आर रेडी टू welcome your requirement and we can develop that one. Okay, and also the test that one. Okay, so that is what the best model is, the agile model. For that they have the agile is the best model. ठीक है, सो और यहाँ पे फेजेस जो है कैन नॉट रन कॉन्करेंटली. कॉन्करेंटली तो वर्क नहीं कर सकते, एक टीम इधर टेस्टिंग कर रही है, एक टीम डेवलपमेंट कर रही है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता. ठीक है, कुछ कुछ मॉडल पे पॉसिबल है. हाँ, ठीक है, कुछ कुछ मॉडल में पॉसिबल रहता है सब कुछ. बी मॉडल में पॉसिबल है वो. मॉडल में कॉन्करेंट चलते रहता है, जो भी इधर डेवलपर कर रहे हैं उनको टेस्टिंग करते रहते हो. ठीक है, देन इंक्रीमेंटल मॉडल. सो वाटरफॉल का ही मॉडल का ही वो एडिशनल पार्ट है ये इंक्रीमेंटल मॉडल. ठीक है, जैसा वाटरफॉल मॉडल है वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या रहेंगे कि साइकिल रहेंगे. ठीक है, cycle. So you can say here multi waterfall you can also say. This is one waterfall. Okay, this is waterfall model. So after completing this one, you will get the one software. Okay, that is software one, and the same software one we are using to implement that one. Okay, so that we are going through the all the phases and you will get the another software. Okay, here get the another software. Okay, so different software you will get. So that is depend on you as per the requirement कि हमको कितने इंक्रीमेंटल कितने मॉडल्स इंक्रीमेंटल करने हैं. ओके, उसके ऊपर डिपेंड है वो, उसकी उसकी कॉस्ट बढ़ेगी. इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कॉस्ट का, क्योंकि जितने फेजेस हमको लेके जाना है तो उतना हमको रिक्वायरमेंट भी लगेंगे, सॉरी वर्क टाइम जाएगा तो कॉस्ट भी लगेगा. ओके, so multiple development cycles take place here making the file cycle. Okay, सॉरी यहाँ पे ये फाइल नहीं है, हाँ, ये लाइफ है. एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है. दिस इज नॉट अ फाइल, इट्स अ लाइफ. ओके, लाइफ फाइल हो गया. ओके, so the multiple development cycle takes place here making the life cycle multi waterfall cycles. So cycles are divided up to into smaller more easily managed iteration. Okay, so each iteration passes through the requirement designing implementation and testing phases. तो incremental model का थोड़ा इजी वर्जन हो गया वाटरफॉल के लिए. ओके, सो वाटरफॉल से ये अभी लोगों को पता चल गया वाटरफॉल मॉडल में अगर जब भी रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो हमको पूरे जो फेजेस है वो पूरे के पूरे हमको कंप्लीट करने पड़ेंगे, है क्या नहीं, और उसके लिए ज़्यादा कॉस्ट जाएगा डेवलपमेंट इन सब सब, क्योंकि उसके एक के ऊपर एक डिपेंड रहेंगे, वो वेट करते रहेंगे, उनका हो जाएगा तो फिर हम वर्क करेंगे. So the requirement are changing. So that's why the new model is uh, introduced. That is what incremental model. So incremental model is nothing but the multi waterfall cycles.
यहाँ पे कैसे साइकिल्स में रहेंगे। अब वो हर साइकिल सारे फेजेस से जाएंगे, एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग। ओके, सो सब साइकिल के जाएंगे और हर साइकिल में उनको सॉफ्टवेयर मिलेगा। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर में, हर इटरेशन में उनको सॉफ्टवेयर मिलेगा। ठीक है, दिस इज इटरेटिव भी कह सकते हैं इसको, इंक्रीमेंटल है। ठीक है, इंक्रीमेंटल, हाँ, इटरेटिव मतलब रिपीटेशन, बट इसको इंक्रीमेंटल कहो, इटरेटिव मत कहो, क्योंकि अजाइल को हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल प्लस इटरेटिव। ओके, दैट इज अ कॉम्बिनेशन बोथ। So this is what incremental model. So here how the incremental model is work. ओके, सो यहाँ पे जो साइकिल्स बनती है वो स्मॉलर और इजीली मैनेज इटरेशन में बनती है। ठीक है, सो वर्किंग वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट इटरेशन। सो वी हैव वर्किंग सॉफ्टवेयर अर्ली ऑन ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। तो जो फर्स्ट हमारे साइकिल बनेगी इसमें एटलीस्ट हमारा वर्किंग प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट जो है वर्क कर रहा है। सो इसी फेज को हम बोलेंगे वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, इसी फेज को हम बोलेंगे वाटरफॉल मॉडल। यहाँ पे हमको सॉफ्टवेयर मिल गया, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है वर्किंग वाला रहेगा, जैसे वो हमको वाटरफॉल में मिला है, क्योंकि वर्किंग वाटरफॉल मॉडल में हमको वर्किंग सॉफ्टवेयर ही मिलेगा ना एट द एंड। ठीक है, तो वैसे हमारे फर्स्ट इटरेशन में वर्किंग मॉडल ही मिलेगा। ठीक है, बट द रिक्वायरमेंट गेट चेंज, देन वी कैन गो फॉर दैट। So subsequent iteration build on the initial software produced during the first iteration. Okay, maximum that will get in the first iteration. So what is the advantages, क्या है कि हम यहाँ पे जितने रिक्वायरमेंट है उतना हम इटरेशन यूज़ कर सकते हैं, सॉरी इंक्रीमेंट मतलब यूज़ कर सकते हैं। सो you can check here that generates the working software quickly and early during the software life cycle. So ये इसका एडवांटेज है कि हम इंक्रीमेंटेड है तो हम इजीली हम वर्क कर सकते हैं, इजीली हम क्विकली डिलीवर कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। मोर फ्लेक्सिबल, लेस कॉस्टली टू चेंज द स्कोप एंड द रिक्वायरमेंट। ओके, इट्स अ मोर फ्लेक्सिबल एंड लेस कॉस्टली। तो यहाँ पे थोड़ा वाटरफॉल से कॉस्ट कम जाता है, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में टाइम बहुत जाता है। ठीक है, और उसमें रिक्वायरमेंट फिक्स है तो उसके लिए ठीक है। सो वी कैन से द सम लेस कॉस्टली। ओके, सो इजियर टू टेस्ट एंड डिबग द ड्यूरिंग द स्मॉलर इटरेशन। सो जैसे इटरेशन बनेंगे इंक्रीमेंटल के तो हमको इजी जाता है टेस्ट करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए। डिबग मतलब एग्जीक्यूट करना। ओके, easier to manage the risk because risk pieces are identified and handled during this iteration. So we can also manage the risk. Risk means what कि risk को हम बोलेंगे कि problems. Okay, so what will be the problems that occurs during the testing and development? Okay, so that is what risk. फिर क्या रिस्क आ सकती है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू इजीली आइडेंटिफाइड, पहले हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे सिक्योरिटी लेवल पे कोई यूजर नेम पासवर्ड हो सकता है, सो टू यू हैव टू एनालाइज द रिस्क फॉर द सिक्योरिटी रिलेटेड। ओके, सो सच टाइप ऑफ रिस्क यू हैव टू आइडेंटिफाइड। सो हियर वी कैन इजियर मैनेज दैट रिस्क। ओके, क्या रिस्क आ सकते हैं हमको मैनेज कर सकते हैं। ईच इटरेशन इज अ इजीली मैनेज एंड माइलस्टोन। सो हम ईच इटरेशन, सभी इटरेशन को इजीली मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, and the same example incremental model also used in the agile process. Okay, यही incremental का concept हम agile में भी add हुआ है। So that is incremental is iterative. Okay, so what are the advantages we seen? Okay, so because incremental model we are easy, some iterations are there, every iteration we can change, we can build, we can test. Okay, some iteration पे हम work कर सकते हैं तो easy जाता है। Okay, so that is all about the incremental model. Then next one is the prototype model. Okay, so प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि हम कुछ भी सॉफ्टवेयर या डेवलप मतलब प्रोडक्ट बनाने के पहले उसका हम कुछ डमी पीस बनाए। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। ठीक है, मॉडल बनाए कुछ हम उसका, और उस सेम मॉडल का यूज़ करके हम देखेंगे कि उसमें रिक्वायरमेंट अगर लगता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो हम चेंज करेंगे। ठीक है, ऐसे टाइप का कुछ है। इसके लिए एग्जांपल ऐसा कुछ दे सकते हैं कि हम कि पहले हम ऐसा मॉडल बनाएंगे
ठीक है, उस पे डिसाइड करेंगे कि क्या कुछ कमियां है, कुछ रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर वो पूरा हमारा कंफर्म होने के बाद फिर हम उसको एक्चुअल फेज से हम स्टार्ट करेंगे उसको डेवलप करना। और अभी हमने आपको सिर्फ डमी मॉडल दिखाया, ओके, सिर्फ प्रोटोटाइप डिजाइन किया। It's not a actual, but it's look like as a actual because everything is actual there. Okay, but जैसे हम आपको दिख रहा है वो वैसा ही रहता है, लेकिन अगर आपको चाहे तो रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं कि ये ऐसा नहीं चाहिए वहाँ पे, देन द रियल टाइम, ओके, सो वही हम उसको डेवलप करेंगे और वैसा ही आपको दिखेगा। सो जस्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट वन मॉडल, सो दैट इज व्हाट अ प्रोटोटाइप। ओके, इट्स जस्ट अ मॉडल। सो प्रोटोटाइप मॉडल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल लाइफ सिचुएशन, okay, real life situation, and which can be evaluated by the user। okay, रियल टाइम सिचुएशन, वन ऑफ द मॉडल क्रिएट करो और चेक करो, और वो रियल की तरह होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी क्या बोलते हैं कि अभी सबसे कॉपर सस्ता है, तो सबसे पहले सोने की अंगूठी बनाने के पहले कॉपर की बनाई, फिर उनको ये डिज़ाइन चाहिए, वो डिज़ाइन चाहिए, वैसा किया कि ऐसा भी चाहिए वैसा भी चाहिए, फिर वो सब रिक्वायरमेंट फिक्स हो गई है अभी। ओके, उस रिंग की जो कॉपर में बनी है, तो यही सेम मुझे अभी किस में चाहिए, गोल्ड में चाहिए। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरा वो हो गया उसका प्रोटोटाइप। वैसे सॉफ्टवेयर का है, वैसे एक प्रोटोटाइप है, एक मॉडल डिज़ाइन कर दिया अभी और उसी को दिखा रहे लोगों को। ओके, मतलब लगेगा वो रियल लाइफ की सिचुएशन ही रहेंगे, लेकिन वो रियल नहीं रहेगा। ओके, रियल इसके तरह ही रहेगा, डमी पीस। ओके, उसमें सब कुछ वो वर्क करेगा। देन अगर रिक्वायरमेंट चाहिए चेंज करना है तो यूज़र भी उसमें सजेशन दे सकता है, रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। फिर सब कलेक्ट होने के बाद लगा कि अभी सभी की रिक्वायरमेंट आ गई, अभी फिक्स हो गया, प्रोटोटाइप बंद करेंगे, एक्चुअल डिजाइनिंग फिर चालू करेंगे। Okay, so the prototype model is representation of the real life situation, so which can be valid the user. So uh, prototype is developed based on the initial understanding of the customer requirement. So suppose the customer requirement having the some application for ओपन का मीन्स ई कॉमर्स एप्लीकेशन, और उसमें तो अभी बहुत चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस टेक द अनदर बिलिंग इंफॉर्मेशन, बिलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले उसको उनको कुछ बिजनेस डालना है, और बिजनेस में उनको पता करना है कि हमारे जो यूजर्स यूज़ करेंगे तो वो कैसे रहेगा। ओके, उसको हम प्रोटोटाइप बना के देखेंगे। जैसे कुछ ऑडियो बुक्स है, तो ऑडियो बुक जो है वो ऑडियो बुक वगैरह आ रहे ना कि सब्सक्रिप्शन कैसे देंगे, वर्क कैसे करेंगे इस पे, तो हम उसको प्रोटोटाइप बनाएंगे। इजीली इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर रिक्वायरमेंट। सो जैसे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक प्रोटोटाइप बना के दे देंगे उसको। ठीक है, सो प्रोटोटाइप बनाएंगे और उनको बोलेंगे कि ठीक है चेक करो अभी, और वो प्रोटोटाइप बना के दे दिया उनको कि वो भी वर्क करेगा, यूज़र भी वर्क करने के लिए लगेंगे उसमें, चेक करेंगे कि क्या इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, वैसा क्या अच्छा लगेगा, कौन सा कलर अच्छा लगेगा इसमें, सो भी है, इस पर वर्क करेंगे। फिर वैसे भी पूरी गैदर हो चुकी है, देन वी आर गोइंग टू go for the actual phases to design the real like this way। okay, so the visible working prototype helps customer to define the requirement। okay, so कैसा है कि सो विजिबल वर्किंग प्रोटोटाइप है, दैट इज हेल्प्स कस्टमर टू डिफाइन द रिक्वायरमेंट, बिकॉज वो आंखों से दिखता है। जैसे ऐप डाउनलोड कर लिया मैंने, जो करना है, या फिर हम बेस्ट एग्जांपल हमारे जियो मार्ट का ही देख लीजिए। ओके, दैट इज बीटा वर्जन लाइक दिस। तो उसमें भी हम रिक्वायरमेंट डिफाइन कर सकते हैं वहाँ पे कस्टमर कि वैसे भी चाहिए था, ये यहाँ पे चाहिए था। ओके, तो एक मॉडल बना के रख दिया है फिलहाल के लिए, और उसमें वर्क करेंगे। सो दैट इज व्हाट प्रोटोटाइप मॉडल। तो अभी कस्टमर के हिसाब से डिपेंड करेगा, प्रोजेक्ट के कॉस्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि हम प्रोटोटाइप मॉडल फॉलो करना है, क्या करना है। ओके, सो इन द प्रोटोटाइप मॉडल, फर्स्ट ऑफ ऑल we'll take the customer requirement। okay, so we are going to as per the customer requirement, basic understanding of customer, we are going to develop this design for the software design। ठीक है, जिसको एज पर द रिक्वायरमेंट हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डिजाइन कर देंगे सॉफ्टवेयर का। ओके, उसके हिसाब से। ठीक है, उसके हिसाब से एज अ कस्टमर रिक्वायरमेंट, देन वी क्रिएट सब, जैसे हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया। ओके, देन वी क्रिएट अ बिल्ड प्रोटोटाइप। बिल्ड मतलब अभी सॉफ्टवेयर। ओके, सो इट्स अ सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो भी है, फ्रंट एंड बैक एंड कैसा रहेगा, क्या रहेगा, हम डिजाइन करेंगे और हम बिल्ड
प्रोटोटाइप डेवलप कर देंगे। ओके, सो देन द कस्टमर गेट इवेल्युएट दैट बिल्ड सॉफ्टवेयर। ओके, वो सॉफ्टवेयर को कस्टमर इवेल्युएट करेगा कि ये कैसा दिख रहा है, क्या कर रहा है, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ रही है, या इवेल्युएट करेगा कलर वैसा चाहिए, कितने लोगों को क्या फीचर्स अच्छे लगे, तो हर फीचर्स को हम कुछ रेटिंग दे देंगे कि इस फीचर को अच्छा लग रहा है, कि ये अच्छा लग रहा है क्या। सो कब ये कस्टमर इवेल्युएट करेगा, देन after evaluating the customer evaluations, then we are going to refine the requirements. Okay, so जो भी requirement उनसे आई है we can refine that one. So कौन सा best लगेगा उसके हिसाब से require करेंगे, then again we are going to design the software, again we build that one. Okay, so this is what continue the process will be going on, and if there is a no customer evaluation is available now, then we are going to stop here. ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे, कुछ भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है अभी, तो हम फिर उसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हुआ है वो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुआ है, और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग हम चालू कर रहे हैं वो है एक्चुअल टेकिंग द ऑल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर इवेल्युएशन, एंड नाउ यू विल गेट द हियर एंड software. Okay, complete software here you will get. Okay, so we can design here, then code engineering, okay, development, testing, everything, and release and maintenance. Okay, this one. So this is what prototype. So actual सॉफ्टवेयर बनाने के पहले जो भी इनिशियल रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, हम सॉफ्टवेयर डिजाइन कर देंगे, बिल्ड कर देंगे और इवोल्यूशन के लिए रख देंगे, और जैसे जैसे इवोल्यूशन आते रहेंगे हम उस पर वर्क करेंगे, वैसे कंप्लीट चलते रहेंगे ये जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता तब तक। ओके, सो जब वो बोलेगा कि नहीं अभी वो फिक्स होगी, देन यू कैन गो फॉर द एक्चुअल डेवलपमेंट, अगेन वी विल गो फॉर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। ओके, so this is what prototype model. So what is the advantage in the prototype model? So the customer can be evaluated, they can require, they can put their requirements. Okay, they can evaluate their requirements. So it can be used when the customer is not sure about what he want. Okay, प्रोटोटाइप मॉडल जैसे अब मान लीजिए कि मुझे मेरा ये बिजनेस है, मुझे एप्लीकेशन बनानी है, और कुछ कुछ फेजेस के बारे में मुझे पता नहीं कि मेरे एप्लीकेशन में क्या होनी चाहिए। ठीक है, सो आई एम नॉट श्योर, सो आई एम गोइंग टू टेक, द सर्वे ऑफ फ्रॉम माय कस्टमर्स। ओके, मैं कुछ यूजर से सर्वे लेना चाहता हूँ। ओके, देन आई विल ऐड दैट मॉडल, सो देन आई एम गोइंग टू टेल द डेवलपमेंट टीम, मैं कस्टमर हूँ एक्चुअली, सो क्लाइंट हूँ, तो मैं डेवलपमेंट टीम को बोलूँगा कि मुझे ये भी वहाँ पे चाहिए। सो दैट टाइम द प्रोटोटाइप मॉडल इज़ वेरी हेल्पफुल। ओके, सो कस्टमर को कभी कभी पता नहीं रहता है कि मुझे क्या करना है, ओके, मुझे क्या क्या चाहिए, सो दैट टाइम इज वेरी हेल्पफुल। आल्सो द फास्टर वे ऑफ फाइनलाइजिंग द रिक्वायरमेंट। ओके, so this is the faster way for finalizing the requirement, so we are easily we are going to finalize the requirement, जो भी requirement आई है हम उसको finalize easily कर सकते हैं। useful for the new technologies and domain, because why, क्योंकि हमने एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट ही नहीं की है। ओके, सो दैट्स व्हाट हियर यूजफुल फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी एंड डोमेन। सो न्यू टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं, न्यू डोमेन यूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज वी आर इन दिस स्टेज। ओके, हम तो इसी में है, बिल्ड प्रोटोटाइप में है, बिकॉज दिस इज अ प्रोटोटाइप। ओके, सो एक्चुअल जो डिज कोडिंग है वो यहाँ पे हो रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज़ हो रही है, सो दैट इज़ व्हाट यूजफुल। ओके, इसका एडवांटेज है। देन कस्टमर डजंट नीड टू वेट लॉन्ग एज इन द लीनियर मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल। सो यहाँ पे कस्टमर को ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो इजीली कम टाइम में वो मिल जाएगा। लीनियर मॉडल और वाटरफॉल मॉडल में कैसा लॉन्ग टाइम चला जाता है। ठीक है, सो फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर इज रिसीव्ड पीरियडिकली एंड चेंजेस डोंट कम एज लास्ट मिनट सरप्राइज। ओके, सो यहाँ पे फीडबैक आते रहते हैं और चेंजेस भी हम करेंगे, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे यहाँ पे। ओके, so periodically we are going to take the customer feedback। ओके, सो जैसे मैंने आज दिया तो कल ही फीडबैक नहीं आएगा। ठीक है, सो बहुत टाइम के बाद आ सकता है। सो डायरेक्टली चेंजेस इतना इजीली नहीं आएगा। ठीक है, तो दैट इज डिपेंडेंट। ओके, सो कस्टमर रिएक्शन इज इम्प्रूव द क्वालिटी एज वेल एज द सक्सेस रेट। सो यहाँ पे कैसे कस्टमर को हम अलाउ कर रहे हैं कि आप इवेल्यूट के लिए, तो इसीलिए कैसा कि एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, तो हम इनका इंटरेक्शंस हो रहा है तो सक्सेसफुली उनका बिजनेस इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए वो लिख रहे हैं वहाँ पे। ओके,
So how it is required. So one, this is what advantages of the प्रोटोटाइप मॉडल. प्रोटोटाइप में याद रखने का कि एक प्रोटोटाइप पहले डिफाइन हो जाता है. ठीक है, सो कुछ पूछते नहीं है ज़्यादा कोई लोग. ठीक है, सो सम डिसएडवांटेज देखिए. सबसे ज़्यादा अजाइल और वाटरफॉल पूछेंगे आपको. ठीक है, वाटरफॉल और अजाइल, और कहीं एकदम 0.001% बाकी के मॉडल पूछ सकते हैं. ठीक है, लेकिन वो भी जस्ट, do you know idea about this model, have you worked on this model? So you can simply say I don't have, actually I didn't work on this model, but I have the knowledge of this model. But I have, we our organization only follows the agile methodology. ठीक है, और अगर आप 4-5 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे होंगे तो 2 साल का वाटरफॉल दिखा दीजिए, 2 साल का agile दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, सो आई हैव वर्क इन द अदर. वाटरफॉल बोल दे तो सेफ हो जाता है सब कुछ, क्योंकि क्लियरली मेंशन द रिक्वायरमेंट. एंड वाटरफॉल में हमने 2 साल लगा दिए, वर्क किए. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लीनियर वाटरफॉल है, टाइम तो लगता ही है. वाटरफॉल मॉडल में आप एक्सप्लेन करेंगे सब पेजेस एक के बाद एक ही करना पड़ता है हमको. ठीक है, हम उसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड एट ए टाइम जा नहीं सकते हैं. ओके, सो जैसे क्लियरली डिफाइंड हो गया तो दूसरा हम फेज पे वर्क करते हैं, जैसे वर्क हो गया वैसे दूसरे फेज पे वर्क करते हैं. और अजाइल मॉडल में कैसा है कि हम कभी भी रिक्वायरमेंट चेंज होंगी तो उसको एक साइकिल है, टाइम देते हैं हम. ठीक है, उसी 14 दिन के बाद या फिर 7 दिन के बाद हम उस पर वर्क करते हैं और उनको बिल्ड मिलते जाता कस्टमर को. ठीक है, तो अजाइल पे हम वर्क करेंगे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन आपको पूछेंगे कि आपको व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एसडीएलसी मॉडल एंड इन विच मॉडल यू हैव वर्क. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड दे विल आस्क आल्सो द, डू यू नो द अदर्स मॉडल? सो या, आई नो द अदर्स मॉडल, कैन यू टेल मी द दैट मॉडल्स नेम? यस, देन वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल. ओके, ऐसे हम बोलना है. देन दे विल आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अजाइल मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है, so some disadvantage of the prototype model. कुछ है क्या इसके disadvantage? So it is an expensive approach and a time taking process when it's compared to the sequential model like waterfall model. तो ये बोलता है कि इसको टाइम लगता है और हाईली कॉस्ट भी जाता है. ठीक है, तो क्योंकि कस्टमर के रिक्वायरमेंट कब तक आते रहेंगे तो उसको वेट करते रहना पड़ेगा. सो सिंस इट्स बीइंग बिल्ट आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट, ओके, द मोस्ट ऑफ द मॉडल प्रेजेंटेड इन द अर्ली स्टेज आर नॉट कंप्लीटेड. ठीक है, तो ये फेल है मॉडल. देन सिंस द प्रोटोटाइप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इट टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट फॉर द सिस्टम. या, सो डॉक्यूमेंटेशन भी, जितना प्रोटोटाइप चेंजेस करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन भी बनेंगे. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो डिसएडवांटेजेस. देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर रिमूव, change and add it in the single update of the prototype, and documentation of the each of them has a difficult. Okay, तो छोटे छोटे भी changes करते रहेंगे तो documentation भी करते रहना पड़ता है. So that's why this has the disadvantage. Once the requirement finalized, then adopting the changes in requirement and adding the new requirement are difficult. Okay, so जब भी requirement पूरी finalize होती है तो हम अडॉप्ट करते हैं चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट. एंड सब हम न्यू रिक्वायरमेंट आते रहेंगे तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट. ओके, सो पूरी कलेक्ट कर लो उसके बाद बनाओ. ओके, सो these आर द सम डिसएडवांटेजेस. नाउ द स्पाइरल मॉडल. ओके, द स्पाइरल मॉडल भी एक अच्छा मॉडल है. सो इज हैविंग द सेम 4 phases, दैट इज व्हाट, planning, risk analysis, engineering and customer evaluation. Okay, so the once prototype is failed, so that is overcome by the spiral model. ठीक है, सो इंक्रीमेंटल मॉडल की तरह ही है ये. सो इंक्रीमेंटल मॉडल किसके तरह है? वाटरफॉल के लिए. ठीक है, सो स्पाइरल मॉडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल, है ना, और प्रोटोटाइप. ठीक है, दोनों तीनों भी आ गए फिर यहाँ पे स्पाइरल मॉडल में. ठीक है, तो यहाँ पे स्पाइरल मॉडल में यू कैन चेक हियर द न्यू थिंग, दैट इज व्हाट, risk analysis. Okay, so here the risk can be analyzed. Okay, so that is very important. 4 pages we can do here. The planning means analysis requirement. Okay, then engineering means we can do for your coding development and execution. Okay, customer evaluation means take the maintenance. Okay, the here the spiral model is similar to the incremental model with more emphasis placed on the risk
analysis. So it will focus on the risk analysis. तो क्या problems आ सकते हैं, okay, software develop करते समय as well as test करते समय. That is very important, risk analysis. So that is focus on the risk analysis. Okay, that is very important. The software project repeatedly passes through their phases in iteration, that is called the spiral in this model. So here the four phases are here. Okay, this is what four phases, and the spiral is get started from here, that is 360 degree. Then here you will get the build. Okay, the software you will get. Okay, and again the requirement is get change, and again this pass to the four phases. This is one phase, second phase, third phase, and fourth phase. Then here you will get the build 2. Okay, that is what 360. जितने साइकिल्स बढ़ेंगे इटरेशन, उतना कॉस्ट बढ़ेगा. ओके, इतना कॉस्ट बढ़ेगा, राइट, इतना कॉस्ट बढ़ेगा. दिस इज इन द फोर स्टेज. ठीक है, ये एक स्टेज, दिस इज वन स्टेज, दिस इज वन स्टेज, दिस इज अनदर स्टेज. जितना साइकिल बढ़ेंगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा. नाउ कैन सी हियर. ओके, this is risk analysis. Okay, the prototype is here. Then here is the planning. Okay, engineering and execution means coding and development. Okay, development and testing you can see. Okay, here planning means requirement analysis. Okay, customer evaluations, we are evaluating the product. Okay, so here the one spiral you can check here, that is started from here, this is completed. Okay, so that is what requirement analysis. Remove everything. So now they start from what requirement analysis. Okay, so planning, this planning is done. Then we are going to design here what prototype with checking the risk analysis. Then we code that one, coding, designing, okay, and testing, and then customer evaluations here. Okay, so here the one phase is completed now. Okay, this is one spiral, then another one, then next one. Can check here what are the things are complete availables in the planning. So you know the estimation of the cost. So what contains the planning? So includes the estimation cost schedule. Okay, you can say the schedule as a US assigned. Okay, and resources for the iteration. What are the resources are required? Okay, how many people and developer and tester, how many people are required here. Okay, it is also involved understanding the system requirements for continuous communication between the system analyst and customer. So system requirement means system की configuration क्या होना चाहिए, हाँ, hardware software requirement. Okay, that is what, that is totally comes under the planning. Okay, so we are going to check the planning requirement analysis. Okay, estimating the cost, schedule, and resources for the iteration. For each iteration the resources can be the change. For each iteration schedule can be different. Okay, understanding the system requirement may be the different, and we need to take the continuous communication between the system analyst and customers. Okay, now the next phase is very important, that is what risk analysis. Okay, so what will be the problems will occur, yeah, okay, during the development and testing also. So identification of the potential risk is done while risk mitigation strategy is planned and finalized. Okay, risk matlab problem, mitigation matlab how to overcome these problems. Okay, that is known as risk mitigation. ठीक है, रिस्क आ गई है, उसको हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम, हाउ टू ओवरकम द रिस्क, दैट इज नोन एज मिटिगेशन. ठीक है, रिस्क मतलब प्रॉब्लम्स और मिटिगेशन मतलब हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम. ठीक है, सो दैट स्ट्रैटेजी we have to plan. Okay, in the risk analysis we are going to plan this strategy, that is very important here. Means, so completion of this planning stage, that is known as the requirement analysis. We each 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 iteration we are identifying the risk. Okay, each iteration we go for the planning phase. Each iteration we go for analysis, risk analysis. Each iteration we go for development and testing. Okay, then each phase I'm going from what customer evaluation. So each iteration having the different that phase. Okay, that is important. Okay, so like a agile spiral.
Okay, Iteration means cycle, no? cycle, yes, iteration means cycle. Then in the engineering phase, okay, what we are going to do in the engineering phase, that is include the testing, coding, deployment software at a customer site. Okay, it includes the testing, coding, deployment software at the customer side. So already I have explained that one. Engineering and execution means we do here the coding, testing and deployment at the customer side. Okay, customer side deploy करेंगे. Then the evaluation, the software evaluation by the customer also include the identification and monitoring the risks such as the schedule, slippages and the cost overcome. तो यहाँ पे each iteration में सब कुछ चीज़ें हो रही है हर iteration में, ठीक है. सो अगर हमको सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो फिर नेक्स्ट इटरेशन हमको बढ़ाना पड़ेगा. ओके, हर इटरेशन इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस मॉडल, दैट इज व्हाट, रिस्क एनालिसिस. ओके, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. स्पाइरल मॉडल सबसे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करता है. Okay, that is very important, means each iteration is cycle. Okay, that comes under means that going through from what risk analysis and each and every phases. हर cycle हर phase पे होके जाती है, ठीक है. हर cycle planning से जाएंगी, हर यहाँ से होके जाएंगी. Okay, then you will get the build here. So here more iteration more cost, ठीक है, वैसा उनका वर्क करेंगे. So this is very important because in the spiral model we are identifying the risk and mitigation. So how to overcome that one. हम पहले पता करें कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और इसी के हम पहले हम डिसाइड करेंगे, ठीक है. सो जैसे कुछ भी हम प्रोजेक्ट बनाना है तो हम पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, ठीक है. हम प्लानिंग करते हैं प्रॉपर, उसके बाद ही हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे घर बनना है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है क्या नहीं. कुछ अर्थक्वेक आ सकता है इतने पॉइंट्स तक, तो हम ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि 0.5 तक अर्थक्वेक नहीं आना चाहिए, ठीक है. तो वैसे हम रिस्क हमने एनालाइज कर ली है, क्या रिस्क है. ओके, रिस्क ऑलरेडी आई हैव एनालाइज कि ये जो जगह है इसमें इतने से लेके इतने तक का अर्थक्वेक आ सकता है. ओके, सो इसके हिसाब से हमको डेवलप करना पड़ेगा. वैसे सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज एंड एनी एवरीथिंग. ओके, वी हैव टू एनालाइज फॉर द ईच एंड एवरी फेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल. तो यहाँ पे कैसा कि हमको स्पाइरल में हर फेजेस में हम रिस्क एनालिस कर रहे हैं और दैट इज़ वेरी बेटर, ठीक है. तो स्पाइरल मॉडल बहुत अच्छा है. सो दैट इज़ द स्पाइरल मॉडल. सेम हो गया अभी अजाइल के तरह, लेकिन उसमें पूरे इसमें कैसा कि पूरे प्लानिंग से होके जाना पड़ता है, उसमें कम इसमें करना है. यहाँ पे हर स्पाइरल में आपको पूरा सॉफ्टवेयर मिल रहा है और वहाँ पे छोटे छोटे पीसेस मिलेंगे सॉफ्टवेयर के. ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है. सो these are the four main phases which involve in the spiral model. And you can see the advantages of the spiral model is what, additional functionality or changes can be done at later stage. Okay, so you can check here the changes कहाँ पे होते हैं, later stage में हो रहे हैं यहाँ पे. So customer evaluation, right here. Okay, then the cost estimation become easy as a prototype building is done in the small fragments. Okay, सो यहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेशंस इजी हो सकता है प्रोटोटाइप बिल्डिंग के लिए क्योंकि उसे में ज़्यादा जा सकते हैं, ठीक है. सो स्पायरल मॉडल में लेकिन कॉस्ट ज़्यादा लगेंगी, ठीक है, क्योंकि जितने इंटीग्रेशन बढ़ेंगे उतने कॉस्ट भी उतनी बढ़ेंगी. लेकिन ये बेस्ट है कि हम यहाँ पे लैटर चेंजेस कर रहे हैं कि हम उसको बाद में चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा तो और हम इटरेशन फॉलो कर सकते हैं कंटिन्यू के लिए. ओके, सो यहाँ पे कैसा मोस्ट ऑफ द रिस्क कवर हो जाता है तो प्रॉब्लम्स कम आते हैं, है ना, प्रॉब्लम कम आते हैं, इसलिए वो यूज़फुल है, ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज रेड. ओके, रैपिडली एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यू कैन से रेड डेवलपमेंट मॉडल. ओके, रैड भी कहते हैं इसको, RAD, ठीक है, रैड भी कह सकते हैं. देन इसको हम क्या, स्पाइरल का डिसएडवांटेज है, इट्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव. ओके,
and it's take the more time. This is the certainty of the spiral. And in advantages you can say risk हमेशा हैंडलिंग होती है और लार्ज प्रोजेक्ट हम वर्क कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, कस्टमर भी सेटिस्फाई है इसमें। और हर साइकिल में यहाँ पे जो डिसाइड करते हैं, ओके, दैट इज़ व्हाट कॉस्ट इज डिफाइनिंग। जितने भी साइकिल हो रही है वो कॉस्ट डिफाइन करेंगे, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया जितनी साइकिल हो रही है वो उतना कॉस्ट रहेगा। और यहाँ पे जहाँ पे एंगुलर डायमेंशन बढ़ रहे तो हम वैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कैसे प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस ऑफ द प्रोडक्ट यू कैन से, प्रोडक्ट प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस कितना है, ठीक है, ऐसा। तो ये कंटिन्यू चलते रहेगा जैसा रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से। तो लेकिन ज़्यादा कॉस्टली है और कॉम्प्लेक्स भी है वो, देन एक्सपेंसिव भी है। नेक्स्ट वन इज अ रेड, ओके, RAID, ओके, ये स्टैंडर्ड नेम है। RAID ये स्टैंडर्ड नेम है और अभी उसको RAD भी कहते हैं, ठीक है। सो पहले जो वर्ड था वो है वर्ड दैट इज RAID, रिस्क, assumptions, issues and dependencies, okay, RAID, risk, assumptions, issues and dependencies। so RAD rapidly application development ऐसे भी कहते हैं, is a high speed adoption of the linear sequential model by using the component based construction। so here is the component based constructions are there, okay। so it is rapidly, so linear sequential like waterfall and incremental, okay। so RAD enable creation of the fully functional software within the very short time। सो हम इसमें कम टाइम में सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं, ठीक है। सो वेरी शॉर्ट साइकिल टाइम रहेंगे इसमें। यूज़ ऑफ वर्किंग कंपोनेंट्स लीड टू मिनिमम डिफेक्ट। सो हम वर्किंग कंपोनेंट यूज़ करेंगे यहाँ पे कंपोनेंट बेस से, तो हम टूल्स यूज़ करेंगे तो जल्दी जल्दी डेवलप करेंगे, ओके। सो डिसएडवांटेज है कि नॉट यूजफुल फॉर द सिस्टम दैट कैन नॉट बी प्रॉपरली मॉड्यूलराइज, ओके। तो ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है, वर्क भी नहीं करते RAD में, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, सो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है और कैन नॉट मॉडल, ओके। सो यहाँ पे देखिए कि रेट मतलब RAD डेवलपमेंट मॉडल में क्या होता है। सबसे पहले हम कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर से, ओके। वंस वी डन द कम्युनिकेशन एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्लानिंग, ओके। यहाँ पे हम पूरा प्लानिंग कर लेते हैं कि हमको करना क्या है। देन वी हैव हियर मॉडलिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो वी हैव टू डू दिस वन similarly, okay, so parallelly, so now the modeling means what we are going to design your database design, UI designing, okay, सब। solution architecture, so भी हम architecture हम project का सब। business modeling, we write the business data modeling like a data for the database, process modeling, business logic, everything we have to perform in the modeling, and then we'll try to develop that one, that is known as a construction। so construction, that means coding component we are going to reuse, then writing the code and development, okay। Again the communication planning is done, then again we go for the next year, okay, that is release, and again modeling the same documentation for the different module and everything, okay। तो ये continuously चलते रहेगा, okay। So rapidly development, ये module, ये this one and again this one, and after the completion then we go for the deployment, okay। Suppose it is all this completed, ओके, ये सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट होने के बाद देन कैन डिप्लॉय, इंटीग्रेशन, डिलीवरी एंड देन द फीडबैक, ओके। दिस इज व्हाट रैपिडली डेवलपमेंट मॉडलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे कंपोनेंट बेस अवेलेबल है, सो बेस ऑन द कंपोनेंट, ओके। ये मॉडलिंग डिजाइन कर दी, देन कंस्ट्रक्शन, ओके, कोडिंग, उसके बाद और वर्क करो, उसके ऊपर और करो, देन उसको हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे सबको, ठीक है। ये हो गया मॉडल 1, मॉडल बेस्ड डिजाइनिंग है। ये हो गया मॉडल 2, ये हो गया मॉडल 3। इसको फिर मॉडल को सबको डिप्लॉय करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दैट वन, ओके, लाइक दिस वे। दिस इज राइट RAD। सो इट इज़ यूजफुल टू इन शॉर्ट टाइम, क्योंकि हम रीयूज़ कर रहे हैं मॉड्यूल्स को। एक बार डिज़ाइन कर दिया मॉड्यूल तो वही हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं और दूसरे इसमें हम क्या बोलते हैं, हम वर्क कर सकते हैं।
Okay, component reuse, then we can use that one again. Okay, so next one is what V model. In the V model, the developer and tester that work okay simultaneously, and this is very important model. V model is very important. So we can say here the two terms also comes here, that is what verification and validation. ठीक है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन लिखना बहुत ज़रूरी है. सो आई एम गोइंग टू ऐड हियर, दिस इज फॉर व्हाट verification. Okay, here the verification is done and here is the validation is done. Okay, verification and validation, very important question to ask in the interview. What is verification and what is validation? ठीक है, बहुत important है ये. वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन बोथ आर सेम है ना. वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. Okay, so the V model, so very important model. Okay, so in the V model, verification and validation simultaneously. Okay, so the developer do the simultaneously, developer is doing the work, the tester is also doing the simultaneously that work. Okay, so this is known as what V model. So tester will do the both verification and validations. Okay, so who will do the verification and validation? Both. Okay, sorry, tester. ठीक है, सो वो तो फिर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस क्या है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, अंडरस्टैंड. वेरिफिकेशन का मतलब होता है वी आर जस्ट चेकिंग वेदर द एप्लीकेशन इज डेवलपिंग एज पर द रिक्वायरमेंट और नॉट. ओके, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो बन रही है कि नहीं, ये चेक करना बोले तो वेरिफिकेशन है. ठीक है, the application is building as per the requirement or not, to check whether the application is building as per the client requirement or not. building is building मतलब कंटिन्यू प्रोसेस चल रही है. ठीक है, अभी पहला फेज आ गया, दूसरा फेज आ गया, पहला मॉड्यूल हो गया, तो पहला मॉड्यूल एज पर द रिक्वायरमेंट बन रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं. ओके, तो ये हो गया, इसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन. वैलिडेशन मतलब होता है कि प्रोडक्ट बनने के बाद उसको चेक करना कि एज पर द रिक्वायरमेंट बना है कि नहीं, दैट इज व्हाट वैलिडेशन. सो वेरिफिकेशन इज नथिंग बट द टू चेक द एप्लीकेशन वेदर इट इज बिल्डिंग एज पर द रिक्वायरमेंट और नॉट, एंड वैलिडेशन इज द प्रोसेस टू चेक वेदर द एप्लीकेशन इज बिल्ड एज पर द रिक्वायरमेंट और नॉट. ठीक है, सो वेरिफिकेशन हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द डॉक्यूमेंट. Okay, document understanding, then FRS, SRS. Okay, that comes in the verification part. Okay, we are verifying the documentation properly. Okay, so whether the application is building as per the requirement or not, and validation means the application बनने के बाद हम उसको validate करेंगे कि as per the requirement बने कि नहीं. Okay, कार है, कार को 4 चक्के लगते हैं. ठीक है, दिट इज वेरिफिकेशन. और हम चेक करेंगे कि कार में 4 चक्के लगे हैं कि नहीं, चेक करना है अभी, वैलिडेशन. ठीक है, सो वेरिफिकेशन में पहला चक्का आया, दूसरा चक्का आया, चक्के के लिए जगह छोड़ी है कि नहीं, ये चेक करना है, मतलब वेरिफिकेशन. ठीक है, ऐसे एग्जांपल नहीं देना है इंटरव्यू में. ठीक है, ये समझने के लिए हमको, एक बार हमको समझ में आए कैसा रहता है कि समझना इम्पोर्टेंट रहता है. एक बार समझ में आ गए तो हम मेरे हिसाब से बोल सकते हैं, बस समझना इम्पोर्टेंट है. वेरिफिकेशन मतलब होता है कि whether the application is building as per the requirement is or not. Validation means we are going to check whether the application is built as per the requirement or not. ठीक है, so these are the two things are available here, verification and validation. So the requirement analysis. Okay, so in the requirement analysis, FRS documentation is also there, then we are going to verify. Okay, verify the requirements, and that same time we are going to do the tester is also the verified at one. Okay,
So now the developer is doing the same thing and simultaneously the tester is also do. Okay, साइमल्टेनियसली यहाँ पे वर्क करेंगे. सो जैसे वर्क चल रहा है यहाँ पे, ठीक है. सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गई, देन आर्किटेक्चर डिजाइनिंग है, डिटेल डिजाइन हो गया, एंड कोड एंड यूनिट टेस्ट, देन सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, देन सिस्टम इंटीग्रेशन एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट. ओके, सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, architecture designing, okay, detail designing, code and unit test. Simultaneously we can work. So we can do one phase is for the verification, okay, one phase is for the validation. Okay, so verify करते रहेंगे हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रॉपर चल रही है कि नहीं. देन हम वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंटेशन, सभी जो पूरे डॉक्यूमेंट्स में वो रिक्वायरमेंट कवर हुई कि नहीं, है ना. स्टैटिक टेस्टिंग, ठीक है. स्टैटिक टेस्टिंग क्या करते हैं हम, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं ना, गो थ्रू करते हैं पूरे डॉक्यूमेंटेशन आर्किटेक्चर. तो जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डेटाबेस का आर्किटेक्चर बना है कि नहीं. ओके, डिटेल डिजाइनिंग, देन वेरिफिकेशन में डेवलपर्स इन्वॉल्व रहेंगे ना. नहीं नहीं ऐसा है, डेवलपर टेस्टर छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है. वो सभी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. अभी हम एच मॉडल्स पढ़ रहे हैं, एच मॉडल्स. ओके. उसमें ये डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, तो उसमें होता क्या है वी मॉडल में, ये हम पढ़ रहे हैं. तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एट ए टाइम होते रहेगा, वेरीफाई भी होगा और वैलिडेट भी करेंगे, ठीक है. मतलब वेरीफाई मतलब डिज़ाइन किया और वैलिडेट मतलब इनपुट भी टेस्ट किया, ठीक है, बोथ टाइम. सो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मोर फोकस ऑन द वी मॉडल, whether the system is building as per the requirement and whether the system is built as per the client requirement or not. So these are we are going to check. तो verify के हम क्या कर सकते हैं, requirement analysis, architecture design, detail designing and this one. And again we go for what, integration, software integration, system integration and acceptance testing. Okay, this comes under where, validation process. Okay, and you know who will do the code and unit test, who will do the software integration, who will do the integration testing. ओके, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है. दैट यू नो, डेवलपर आएगा, टेस्टर भी आएगा, सब आएगा, ठीक है. दैट इज डिपेंडेंट. सो द मेन इज वी आर गोइंग टू वेरिफिकेशन स्टेज एंड देन वी गो फॉर द वैलिडेशन स्टेज, ठीक है. वेरिफिकेशन स्टेज पे से जा रहे हैं, उसके बाद हम वैलिडेशन के स्टेज पे जा रहे हैं. सो दिस इज व्हाट वी मॉडल, ठीक है. सो हमको पूरे फेज से निकल रहा है, मतलब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, सिस्टम डिजाइनिंग कर रहे हैं, डिटेल डिजाइनिंग किए, कोड यूनिट टेस्ट किया, देन इंटीग्रेट सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट किया है हमने, ऑल द मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड प्रॉपर्ली और नॉट, एंड डेटा फ्लो वी आर चेकिंग इंटीग्रेशन. ओके, द सिस्टम इंटीग्रेटेड हुई कि नहीं प्रॉपर्ली, ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड देन वी बाय डिप्लॉय दैट वन एंड वी आर चेकिंग द एक्सेप्टेंस, ठीक है. सो द टेस्टर विल डू द बोथ वेरिफिकेशन एज वेल एज वैलिडेशन, ठीक है. टेस्टर वेरिफिकेशन भी करेंगे, वैलिडेशन भी करेंगे. ओके, एवरीथिंग इन्वॉल्व, एंड डेवलपर इज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर, बिकॉज डेवलपर विल डू दैट वन, है ना. डेवलपर आर्किटेक्चर डिजाइन वगैरह सब कुछ वही करेगी कि नहीं. सो वेरिफिकेशन, अभी एज अ टेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, वेरिफिकेशन वी आर गोइंग टू चेक वेदर द एप्लीकेशन इज बिल्डिंग द एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट और नॉट. Validation is what, whether the we are going to see whether the application is built as per the client requirement or not. Okay, so that is for the tester. ये वैलिडेशन और वेरिफिकेशन मैंने बताया, दैट इज फॉर द टेस्टर. तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली भी वर्क करते हैं, ठीक है, डेवलपर एंड टेस्टर, ठीक है. डेवलपर ने किया, फिर उसके बाद टेस्टर ने किया, साइमल्टेनियसली दे वर्क. ओके, टेस्टर एंड डेवलपर दोनों भी करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट वन इज agile model. So that is most important. So today we are going to stop, and the next class we are going to start the agile model, ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में मैं कल agile मॉडल एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट में. दिस इज agile प्रिंसिपल, इट्स नॉट अ स्क्रम, ठीक है. स्क्रम इज अ डिफरेंट विच फॉलोज द agile terminology. When we start the real time manual testing, then I will explain again this agile, same agile I will explain. So this is just we are going to check here what are the different SDLC models are there and what are the most important models are there. Okay, just I have explained here shortly. हमने मॉडल्स के बारे में देखे कि उसमें डेवलपमेंट प्रोसेस कैसी होती है और टेस्टिंग प्रोसेस कैसी होती है. ये वैसे हम अजाइल में भी देखेंगे
इसमें होता क्या है, बस यही अंडरस्टैंड करना है फिलहाल के लिए। इसमें जितने भी कुछ दिख रहा है बड़ा बड़ा, ये सब क्लियर हो जाएगा जब हम रियल टाइम पे सिनारियो में वर्क करूंगा ये। ठीक है, अगेन उस जीरा के पहले मैं अजाइल और स्क्रम में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, देन दीज आर हैविंग द सम इम्पोर्टेंट टर्म्स बट नॉट मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो ऊपर ऊपर मैं थोड़ा फास्ट करूँगा अब यहाँ से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस वी ऑलरेडी नो, द प्रोजेक्ट फिनिशर्स, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, क्लोजिंग। ओके, इनिशियल स्टेज में हम क्या बोलते वर्क लेते हैं, है ना, कस्टमर से, बिन उसको किक ऑफ मीटिंग, आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट मैनेजर, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, ये डिटेल में है। फिर प्लानिंग कैसे करता है ना। फिर हम क्लोजिंग एक्टिविटी, फिर आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट और चेंज रिक्वेस्ट आती है तो उस टाइम पे क्या होता है। ओके, तो चेंज रिक्वेस्ट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो इतना कुछ इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता है एज अ टेस्टर के लिए। ठीक है, व्हाई डू वी नीड एससीएम, ये भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। मैं ये ओवरव्यू लूँगा। यहाँ से इम्पोर्टेंट है क्वालिटी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल। ओके, यस क्यू ये और यस क्यू सी। ओके, इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैं यहाँ से थोड़ा, और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ वहाँ मैं टाइम दूंगा, जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगा। ठीक है, सो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, हाँ, ये वाला। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरिफिकेशन की स्ट्रैटेजी कौन सी रहेंगी और वैलिडेशन की कौन सी। एसडीएलसी मॉडल ये है, तो इसमें वेरिफिकेशन कहाँ पे होता है, वैलिडेशन कहाँ पे होता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एसडीएलसी टेस्टिंग। ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग कैसे करेंगे, टेस्टिंग के रोल्स क्या है। ठीक है, टेस्टिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर कौन रहता है, इसी को हम बोलते हैं क्यूए इंजीनियर। ओके, क्यूसी और क्यूए इंजीनियर और सॉफ्टवेयर एनालिस्ट आल्सो। ओके, ऑल आर सेम। ठीक है, देन सीनियर, देन टेस्ट लीड वगैरह वगैरह क्या रहते हैं, टेस्ट लीड, टेस्ट मैनेजर। और टेस्टिंग में टर्मिनोलॉजी की क्या यूज होती है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स, Okay. ये बहुत हाँ. इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट रियल टाइम मैनुअल टेस्टिंग। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट प्लान बनाएगा, तो उसका एंट्री क्राइटेरिया क्या है, एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा। वो भी ब्रीफली जाने की ज़रूरत नहीं, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट क्रिएट होंगे। ओके, तो देन यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ पे मैं ब्रीफ करूँगा। एस टी एल सी रिक्वायरमेंट एनालिसिस में टेस्ट प्लान, यहाँ से अपना एग्जैक्टली टेस्ट प्लान प्रिपरेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वर्क करना चालू होती है, तो टेस्ट प्लान प्रिपेयर करेगा टेस्ट लीड। ओके, टेस्ट प्लान प्रिपरेशन, बट दीज आर व्हाट, एस टी एल सी प्रोसेस। ठीक है, ये देखो एस टी एल सी प्रोसेस में क्या आता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लान प्रिपरेशन, ये। तो ये शॉर्ट में इंट्रो दे रहे हैं हम कि एस टी एल सी प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, एस टी एल सी प्रोसेस में क्या होता है, फिर यहाँ से हम चालू कर देंगे टेस्ट प्लान। एक्चुअल टेस्ट प्लान कैसे बनाया जाता है, वो टेस्ट लीड क्रिएट करता है। ओके, सो टेस्ट प्लान में क्या आता है, सो समटाइम दे विल आस्क यू द डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट इज टेस्ट प्लान। ये आपको पूछेंगे टेस्ट प्लान क्या है, तो हम बताएंगे टेस्ट प्लान मतलब एक डॉक्यूमेंट है, देन वी आर गोइंग टू चेक हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट द एंटायर एप्लीकेशन। ठीक है, और टेस्ट प्लान के बाद हम फिर चालू करेंगे राइटिंग द टेस्ट सिनारियो, टेस्ट केसेस, देन आई विल शो गिव यू द वन एप्लीकेशन। और आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाना है, टेस्ट आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनारियो लिखना है। ओके, फिर वो सेम टेस्ट सिनारियो टेस्ट केसेस को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई